والابتر صدق اللہ العظیم۔ اور نعت رسول مقبول بہت ضروری ہے، لیکن درود پاک ان سے بھی ضروری ہے۔ آپ اپنی زبانوں کو معطر کر لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر درود پاک بھیج کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولنقائہم اجمعین۔ سب دوستوں کو السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ تو مالمو پور میں دوستوں ایسی صورتحال چل رہی ہے کہ جس کو مینجمنٹ اور مالکان تسلیم نہیں کر رہے۔ اس کے اندر مینیمم بیس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ وزیر اعلیٰ اعلان تو کرتی ہیں، وہاں پر کوئی آ نہیں رہا، نہ کوئی مینیمم بیس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ورکر کو کوئی بھی سہولت نہیں دی جا رہی، نہ سوشل سیکورٹی کارڈ، PYV کارڈ، پینشن کارڈ، سروس کارڈ کچھ بھی نہیں دیا جا رہا، بلکہ 20,000 روپیہ سیلری دی جا رہی ہے۔ تو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ مالمو پور کے ورکر کو بھی ہر جگہ پر اپنا ساتھ یاد رکھیں اور مالمو پور کے ورکر کا ساتھ دیں۔ مالمو پور کی طرف سے آپ سب کا شکریہ۔ محمد شوکت صاحب مزدور اتحاد مزدور اتحاد شہداء کے شہداء کو سلام سلام مقررین وہ جاننا اور باقی دوستوں کی بھی گل سننا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں پریس کلب کے ان تمام معزز حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج مزدوروں کی آواز یہاں پر مقام بالا تک پہنچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، اور شکاگو کے ان مزدوروں کا سلام جنہوں نے وقت کے اوقات کا تعین کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہاں پر تمام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو سلام، جو شب و روز محنت کر کے اپنے گھر کی کفالت کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو کی جانے یار فقیرہ روٹی بندہ کھا جاتی ہے۔ جناب والا ایوان میں بیٹھے معزز وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے میری گزارش ہے کہ اداروں میں ان لوگوں کو ذمہ داری سونپی جائے جو آپ کی ٹیبل پر مزدوروں کے مسائل پیش کریں، نہ کہ سب اچھا کی رپورٹ پیش کر کے اپنے کندھوں پر آپ کے ہاتھوں سے ستارے سجا کے اپنے مقامات کو بلند کر کے آگے نکل جائیں۔ آج یہاں پر جو لوگ ہیں یہاں پر اپنی سفید پوشی کا لبادہ اوڑے اپنے بچوں کے حقوق کے لیے آپ سے جناب دستگزار ہیں، اور اسی امید پر کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ایک ماں کی طرح ریاست کے لوگوں کو دیکھوں گی، تو آپ کا یہ بیٹا آپ سے ایک ماں کے ہونے کے ناطے آپ سے گزارش کر رہا ہے کہ ہمیں روٹی عطا کی جائے اور موجودہ وقت کے حساب سے دی جائے۔ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ثناء اللہ انصاری صاحب، میں درخواست کروں گا ساری وہ بیٹی ہوئی ہے، ساری رہنما ہوئی ہے محترمہ جلوت علی صاحبہ جڑیاں خواتین کے حوالے نال سالہ تو جدوجہد کر رہی ہیں، میں درخواست کروں گا بہت بہت تالیاں نال استقبال بھی کرو۔ سارے لوگ قابل احترام نے جدوجہد بہت ضرورت۔ بہت شکریہ بابا جی آپ کا بھی، اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں پریس کلب کی، اور جنہوں نے آج ہمیں اس اپنے استقبالیہ کیمپ میں ہم مزدوروں کو اپنی آواز بلند کرنے کا موقع دیا۔ جی آج تاریخ میں، میری زندگی کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے ہمیں بہت باعزت ہم محسوس کر رہے ہیں، ورنہ یہاں پہ جب ہم آتے تھے تو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ ہمارا تو یہ موقف ہے کہ میڈیا کا اور مزدوروں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب تک میڈیا ہمارے مسائل کو اجاگر نہیں کرے گا، ہماری آواز تو پہلے ہی دبی ہوئی ہے، ہماری اس سرمایہ دارانہ نظام میں آواز بالکل ہی نہیں نکلتی، اور اگر یہ میڈیا کے ساتھی
हमारा साथ देते हैं तो हमारी सुनवाई हो जाती है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान भट्टा मजदूर यूनियन के मेंबरान को, होम बेस्ड वीमेन वर्कर्स यूनियन को, टेक्सटाइल पावर लूम गारमेंट वर्कर्स यूनियन को तहे दिल से यहाँ पे खुशामदीद कहती हूँ। इसी तरह से टेक्सटाइल पावर लूम गारमेंट वर्कर यूनियन के बहुत दूर दराज इलाकों से मोहम्मद खालिद साहब की रहनुमाई में जो साथी तशरीफ लाए हैं, साबरा, शाजिया, जमीला, इन सब की रहनुमाई में जो गज्जू मद्दा से और जिशान निश्तर कॉलोनी से जो हमारे साथी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मुतालबा ये है कि हम मजदूर लोग हैं और हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारी तनख्वाहें बहुत कम हैं। 37,000 का ऐलान किया था हुकूमत ने, लेकिन अमली तौर पे उसकी बहुत कम जगहों पे वो दी जा रही है। हमारा मुतालबा है कि हमारी आवाज़ को बुलंद किया जाए और 75,000 हमारी तनख्वाह की जाए। इसके साथ ही मैं अपनी वज़ीर आला जो कि खातून हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वो काम की जगहों पे जाके खवातीन के मसाइल को देखें। काम की जगहों पे खवातीन के साथ जो हरासानी के वाक़यात होते हैं, वहाँ पे कानून तो हमारा बना हुआ है, हैरेसमेंट कमेटियाँ भी कही जाती हैं कि बनी हुई हैं, लेकिन वो फाल नहीं है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने 3 मुतालबात के लिए आप सब साथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मीडिया में भी कवरेज दें और हम सारे साथी इसके लिए जुड़े हुए हैं। हम 5 तंजीमें जो इसके लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रही हैं, उनमें सबसे पहला मुतालबा 75,000 रुपये का ऐलान किया जाए और सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि उस पर अमल दरामद करवाया जाए। इसके अलावा फैक्ट्री की सतह पे डे केयर सेंटर कानून में मौजूद है, हमारे मजदूर कवानीन में मौजूद है कि वो हैं, बट अमली तौर पर नहीं है। वज़ीर आला साहिबा से दरख्वास्त है कि हम इनके साथ चलने को तैयार हैं, ये हमसे मुशावरत कर सकती हैं, हम इनको लेके जाएंगे उन खवातीन तक, क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स हैं, सरमायादार हैं, ये इनको बहुत अच्छी पिक्चर दिखा देते हैं कि हमारी जगहों पे सब ओके है, लेकिन मेरी यहाँ पे जो खवातीन बहनें बैठी हैं और हम दिन रात इनके साथ राब्ते में हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। हैरेसमेंट कमेटियाँ नाम की बनी हुई हैं, जबकि वहाँ पे ऐसे उन पे अमल दरामद नहीं है। तो हम मुतालबा करते हैं कि डे केयर सेंटर जो है वो खवातीन को वहाँ पे फाल किए जाएं, हरासानी कमेटियों में मजदूरों की रहनुमाई की जाए और कम से कम उजरत जो है वो 75,000 की जाए। हम इन सब मुतालबात के लिए सिर्फ आज के दिन इकट्ठे नहीं होते, हम लेबर एजुकेशन फाउंडेशन, हम पाकिस्तान भट्टा मजदूर यूनियन, टेक्सटाइल पावर गारमेंट वर्कर्स यूनियन, हमारे साथ TTC, PTCL, हमारे साथ बहुत सी मजदूर तंजीमें जुड़ी हुई हैं और मैं ये दावा करती हूँ कि अगर हमें इस दफा 75,000 पे अमल दरामद ना किया गया तो हम इस तरह के जलसे रोज सजाने के लिए तैयार हैं। हमारे मजदूर मरने के लिए और अपना हक लेने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी जलर में भी मैं दरखास्त करांगा आज दे इस इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर साथियों के नाल मजदूरों की नुमाइंदगी करते हैं मोहम्मद हनीफ रामे साहब मुतहिदा लेबर फेडरेशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी वहाँ उसको सर सलाम पेश करती हूँ और मुझे ये भी फख्र है कि जो मैं जिस गौरव जो मेरे गौरव है मैं उस गांव की बेटी हूँ कि जो 1972 के अंदर और पाकिस्तान ट्रेड यूनियन के सदर थे और रावी रियाद के अंदर उन्होंने एक इंकलाबी जद्दोजहद को लीड किया था और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये बात की जाती थी कि अगर पाकिस्तान में इंकलाब आएगा तो इन लोगों की जद्दोजहद से आएगा। मैं आप सबकी जद्दोजहद को जितने हमारे साथी, हमारी बहनें, मजदूर, किसान, फतवा जो इस निजाम को चैलेंज
नाम पे जिंदा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं दरखास्त करांगा साढ़े सुबह तो पहला जरा इतने रैली आई वो शरीफ सन मालूम देखा। मैं दरखास्त करांगा मोहतरमा रबिया बाजू तमाम मजदूर साथी जिस मकसद के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं, यकीनन वो शिकागो के शोहदाओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए हैं। हम तमाम मजदूर साथियों ने जो एक कैंपेन का आगाज किया था शिकागो के मजदूरों ने, उसी कैंपेन को, उसी जद्दोजहद को आगे लेकर चलना है और अपने हकूक के लिए हर फोरम पर जद्दोजहद करनी है। हम तमाम मजदूर साथियों ने अपने बुनियादी हकूक हासिल करने के लिए हुकूमते वक्त और जितने भी अशराफिया है उनका हर फोरम पर मुकाबला करना है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपने हकूक इत्तेहाद के साथ हासिल करेंगे और अपने हकूक के लिए लड़ेंगे। और जो हुकूमतें मजदूरों के खिलाफ कानून पर काम कर रही हैं, उनके खिलाफ भी जद्दोजहद करनी है और मजदूर एक पेज पर इसी तरह आगे भी खड़े रहेंगे ताकि हम लोग अपने हकूक हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद, मजदूर इत्तेहाद। ज्यादा नवाज साहब है ना तो पहले ही लोग आए हैं। मैं मुख्तसर गल करना चाहता एक ये वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਕਾਮਰਾਨ ਲਾਸ਼ਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਕਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਲਮਾਰ ਬਾਗ, ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਆਮਦਨੀ बड़े बड़े टिकटों के जरिए और उसे शादियों के फोटो शूट 3-4 दिन पहलों शालमार बाग के लखा रुपए की आतिशबाजी की गई और साड़ी चीफ मिनिस्टर की ज़ेरे निगरानी कामरान लाशारी जो कि 12 साल पहले रिटायर हुए सी वो सारे नज़ारे दिखाता रहा। मैं कहांगा कि असी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के वर्करां वास्ते आवाज़ उठाइए कि उन्होंने बड़ी नाजायज ज्यादती हुई। बड़ी मेहरबानी। बहुत ही मोहतरम और बहुत ही मैं समझना मजलूम शख्सियत की तशरीफ फरमा ने खान के दावा देंगे जनाब रामी साहब। दूर नारा मारे करो एक्चुअली अपने वास्ते तो भरपूर हो जाए। मैं अब हमारे दोस्त जो है कुछ 2 दिन की हमने स्पीच भी करानी है। इकराम मुस्तफा साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पेप्सी कोला एंड वर्कर यूनियन CBL से गुजारिश है कि वो आए तशरीफ लाए। हम मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम भी चलता रहे, हमारे दोस्तों का आमद का सिलसिला भी चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सारे मजदूर भाइयों को और बहनें जो आपके पास से गुजर रही हैं, इन सबको आज के दिन के हवाले से सुर्ख सलाम पेश करती हूँ और ये मुतालबा भी करूंगी कि जब तक पाकिस्तान का मजदूर खुशहाल नहीं होगा, तरक्की और खुशहाली के दावे महज फरेब हैं, फिर ये हकीकी आजादी नहीं है। हमारा मजदूर आज भी मुश्किल हालात में
ये आज का दिन याद रहेगा। बहुत अच्छा दिन है, तारीखी दिन है कि आज हम सारे यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रान और अपने ख्यालात का इजहार करम मोहतरमा रज़िया बाजवा साहबा। गुलाम मोहम्मद यकूब साहब, मोहम्मद अली फैजाज साहब और जनाब खालिद खुर्शीद साहब और बहुत सारे साथियों, जनाब बंद की हुई है। खुदारा इस जिद्दोजहद के अंदर आप में से हर एक लीडर है, आप में से हर एक कायद है, उठे और इकट्ठे हो, अपने आप को इकट्ठा कीजिएगा, उन आवाजों का साथ दीजिएगा कि जो वो आवाजें जो अपनी जान माल सब कुछ अपने ऊपर कुर्बान करके, और मेरी माए बहनें जो यहाँ पे 3 हफ्ते तक बैठी थी और इस फिरौनियत पसंद हुकूमत ने उनके ऊपर बच्चे काटे, डॉक्टर्स जो वहां पे जिद्दोजहद कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आवाम के हकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, उनकी टर्मिनेशन के दिन निकाल दिया। लेकिन मैं एक बात ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं इन इक़्तिदार में बैठे हुए हुक्मरानों को कि ये जो है पाबंद सलासर रखना, टर्मिनेशन, सस्पेंशन, ये आज पहली दफा नहीं हुए। हसन नासर आज पहला नहीं है जो लाहौर किला के अंदर, और लाहौरियों हमारे ऊपर ये बड़ा कर्ज है, कर्ज हमारा उन जानों के लिए जो कि इस शाही किला के अंदर अपनी जानें देंगे, कर्ज हमारा उस हाई कोर्ट के अंदर जहां पे कि यहाँ के मुंतखब वजीर आजम को फांसी की सजाएं दी गई। ये कर्ज है हमारे ऊपर, कर्ज है हम लाहौरियों, लाहौर के अंदर बसने वालों कि उसको, उस धब्बे को, उस खून को दुरुस्त करें। आखिर में मैं एक बात, जो आज जंगी जुनूनियत की बात हो रही है, जंगी जुनूनियत की, मैं पुरजोर एहतजाज और मजम्मत करता हूं उस जंग का जो कि आप हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी जो हमारे ऊपर थोपना चाहता है। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक पंजाब का बेटा होने के नाते कि अब पंजाबी अपनी जानें नहीं देंगे, मैं सलाम पेश करूंगा उन सिखों को जिन्होंने आज अपने बच्चों से कहा है कि मत लड़ो उनके साथ जो कि हमारा पंजाब है। पंजाब के अंदर जब आजादी के साथ गई तो मेरे अजीजों 20 लाख जानें गई थी हमारे पंजाबियों की, हमारे पंजाब ने यह खून दिया था, और 20 लाख लोग थे जो यहाँ पर। जब यहाँ पे जंगें हुई, सबसे ज्यादा जब लाशें उठाए गए तो हम पंजाबियों के बच्चों के उठाए गए, और हम कतई तौर पे यह इजाजत नहीं देते कि ये साम्राज्य, ये मुफादात, ये बुर्जुआजी क्लास जो इस वक्त कहीं भी खित्ते में हो, वो हिंदुस्तान में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो सऊदी अरब में हो, या दुनिया के किसी मुल्क में भी क्यों ना हो, हम इजाजत नहीं देते कि इंसानों का खून बहा किया जाए। लेकिन अगर किसी दुश्मन ने मेरे वतन के ऊपर, मेरी सरजमीन के ऊपर और अपनी नाजायज और नापाक ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, तो यकीन जानो आप समेत, मुझ समेत, हमारे इन सहाफी भाइयों समेत कोई एक शख्स नहीं होगा कि जिस आमर की, इन आमरियत वालों की, वो भले हिंदुस्तान हो, यहाँ से शुमाल से उठने वाली कुव्वतें हों, हम इस अमन के लिए, अपने वतन अजीज के हिफाजत के लिए, अपने आप हिफाजत की खातिर इंशाल्लाह हम जाने देंगे नहीं, हम जाने लेने की अगर यह वक्त पड़ा था, हम उन हर कुव्वतों के साथ खड़े होंगे जो कि अपने वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आखिर में मैं आमिर सुहेल आपका यकीनी तौर पर, राना साहब आपका मशकूर हूँ, रामे साहब आपका मशकूर हूँ कि प्रेस क्लब ने पहली दफा आज मजदूरों के लिए, वरना हमेशा यही होता था कि नंगी सड़क पे हम इकट्ठे होते थे, एक आधा जो चंदे मांग के ट्रक ले लिया करते थे, उस ट्रक को लेके हम आगे चल जाते थे। आज जो हमें मेन्यू ये दिया, आज जो ये महफिल की गई, उस शऊरी और शऊर को बेदार करने के लिए मैं प्रेस क्लब की इंतजामिया, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अंसारी साहब, हमारे दोस्त, हमारे भाई और अब बाकी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम मजदूरों को इन्होंने इस काबिल समझा कि प्रेस क्लब और मजदूर की तारीफ के अंदर, रामे साहब जरूर बताइएगा कि मजदूर की तारीफ में सिर्फ ये नहीं है कि जो हाथ से काम करता है, जहन से काम करने वाला, कलम से काम करने वाला, इनके भी 2500 मसाइल हैं कि जो एक आमिर और साम्राज्य वहां पे बैठा हुआ है, टीवी चैनल्स में हो, अखबारों के मालिकान हो, इनके हकूक नहीं देते। हकूक क्यों नहीं देते? क्योंकि इनके हकूक दबाएंगे तो फिर उनकी तिजोरियां भरेंगी और ऊपर से ऊपर वो चलता जाएगा। मैं समझता हूं कि हमें आज इस चीज का इरादा करना चाहिए और ऐलान करना चाहिए कि हम हर उस ज़ई शऊर के साथ जो कलम के साथ साथ, अपने जहन के साथ, हमारी सोच के साथ हो,
वो हमारा मजदूर है, हमारा कायद है, हमारा भाई है, और इंशाल्लाह हम अपने हकूक की जिद्दोजहद जारी और सारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अजीज दोस्तों कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू। मैं पाकिस्तान टेक्सटाइल गारमेंट वर्कर फेडरेशन के रहनुमा जनाब नियाज खान, होम बेस वर्कर यूनियन की सदर जलवत अली, राणा हासिल साहब और उनके साथियों को यहाँ आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने नाम ले लिया, मैंने मैं दोबारा दे देता हूँ। वैसे हाफिज साहब तो मैंने सबसे पहले नाम तालियां भी मारो वेलकम करने। तमाम दोस्तों का हाफिज इमरान साहब और जनाब अतीक साहब, मैंने तमाम लोगों के पहले नाम दिए हैं। हमारे काबिल एहतराम लीडर हैं, हाफिज इमरान साहब हैं, जनाब साहब नसीब चौधरी साहब है, यकूब साहब है, नजीम शहबाज साहब है, सब लोग तशरीफ बुलाए हैं, हमने उसको वेलकम किया है। मैं और खवातीन वर्कर्स की लीडरशिप में तशरीफ लाए हैं, जलवत अली साहबा तशरीफ लाए हैं, जनाब नियाज खान साहब टेक्सटाइल एंड गारमेंट वर्कर फेडरेशन में तशरीफ लाए हैं। और डॉक्टर एजाज अनवर वो शख्सियत ने कि अगर किसी ने रंगा दे राई लाहौर वेखना होवे तो डॉक्टर एजाज अनवर साहब का काम देखता है। डॉक्टर एजाज, मैं बिस्मिल्लाह जी आया हूँ आखना अपने मजदूर भरावां नूं। जी सब आवाज दे, नारों का जवाब दे। मैं पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन काबिल एहतराम बुजुर्ग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, जिनको आप इनको तो नहीं जानते, लेकिन एक पिछले दिनों वाकया हुआ था कि हमारा एक मजदूर साथी इंसाफ के लिए जंग लड़ता लड़ता लाहौर हाई कोर्ट में अपनी जान की बाजी हार गया। नेस्ले कबीर वाला के एक वर्कर आसिफ जट, जिसको नौकरी से मुलाजमत से बरतरफ किया गया था, अदालतों ने उनको बहाल कर दिया। 10 साल तक उन्होंने अपना केस लड़ा, अपना घर बिक गया, 2 बीवियां 6 बच्चे हैं उनके, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। और आखिरी दिन उन्होंने जज के नामुनासिब रवैये की वजह से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खुदकुशी की। उनके वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद असलम साहब आज यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूँ क्या भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल करें। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे साथी ने अपनी जान का नजराना पेश किया है इस जालिम निजाम के खिलाफ, इस इंसाफ ना देने वालों के खिलाफ। तो आज हम उनको यकीन दिलाते हैं कि आपका एक बेटा गया, लेकिन ये जितने लोग हैं ये आपके साथ हैं, आपके बेटे हैं। जनाब असलम भाईजान सबका मशहूर हूँ कि जिन्होंने मेरे बेटे के लिए जद्दोजहद की, कि बाबा सरवर साहब, रामेश साहब और दोस्तों ने इनके लिए बहुत जद्दोजहद की, इनका मैं बहुत मशहूर हूँ। अल्लाह मेरी बात इसलिए कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। बंदा जान तो गया, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਚ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਰਦਨ ਜੁੜ ਗਈ, ਇਹ ਗਰਦਨ ਆਪਣੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। बहुत शुक्रिया। इस दिन के हवाले से
बहुत सारे दोस्तों ने खिताब किया है, मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा महकमा हेल्थ पंजाब के वर्कर्स और डॉक्टरों की जद्दोजहद पर। वो पिछले 3-4 साल से मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं और तकरीबन 2-3 माह से वो मुसलसल सड़कों पर हैं और ये तासर पैदा किया जा रहा है कि शायद वो रुकावट हैं, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा प्राइवेटाइजेशन से, बल्कि वो ज्यादती कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये कोई नया सांप या अजदहा नहीं है। 1996 में आज से 30 साल पहले इसी अजदहा को ने पीटीसीएल पे हमला किया। उस वक्त पहली दफा जब पीटीसीएल बना तो मैं जनरल सेक्रेटरी था इस यूनियन का, तो उस वक्त हमने भी इसी तरह जिस तरह आज ये महकमा हेल्थ वाले जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हमने भी इसी तरह जद्दोजहद की थी। हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था, आप अच्छी से अच्छी लेजिस्लेशन करवा लें, कानून साजी करवा लें, कल आने वाले वक्त में अदलिया आपके साथ खड़ी होगी, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। कल आने वाला पीटीसीएल का जो एम्प्लॉयर होगा वो आपके हकूक खत्म नहीं कर सकेगा। तो हमने इसी पे बिल्कुल इत्तेफाक किया था और हमने कानून साजी आज से 30 साल पहले करवाई थी। सिर्फ उस कानून साजी का 1-2 चीजें बताना चाहता हूँ। हमने उसमें लिखवा दिया था कि जितने भी मजदूर अब ट्रांसफर होके नया इदारा जो पीटीसीएल बन रहा है इसमें ट्रांसफर होंगे तो उनके हकूक, उनकी मराहत, उनकी तमाम चीजें फेडरल गवर्नमेंट वाली होंगी और पीटीसीएल के पास, उसके एम्प्लॉयर के पास ये हक नहीं होगा कि वो उनको चेंज कर सके। लेकिन आज 30 साल से हम बस मुख्तर कर रहा हूँ, 30 साल से वो मजदूर पीटीसीएल के जीरो से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसी जद्दोजहद को, उसी कानून साजी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज कोई आवाज सुनने वाला नहीं। इसी तरह ये जो महकमा हेल्थ के मजदूर हैं, आज उन्हें दिलासा तो दिया जा रहा है, लेकिन इस दिलासे के बाद उनकी कोई आवाज नहीं सुनेगा। ये क्योंकि हम मिसाल हैं आपके सामने, तो मैं हुकूमत वक्त को ये कहता हूँ कि एक दायलत करवाएं। उनका भी जिनके साथ ये ज्यादती हुई है उनका कौन अदाला करे, और जिनके साथ ये ज्यादती होने वाली है आज वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो कल उनकी आवाज के साथ कौन खड़ा होगा। ये मेरा एक मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि एक दायलत करवाया जाए। इसी तरह आज का ये दिन जो है एक जद्दोजहद का दिन है, तो मैं इस जद्दोजहद के दिन में आसिफ जावेद की खिदमत को खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि जिसने वक्त से पहले ये कहा था कि आज कोई अदलिया, कोई बंदा, कोई इदारा, गवर्नमेंट मेरी आवाज नहीं सुन रहा, तो मैंने अपनी आवाज सुनने के लिए अपनी जान को कुर्बान करना है, और फिर कम अज कम मेरे जो हकूक हैं वो मेरे बच्चों को दिए जाएं। तो ये कोई उसने अचानक नहीं किया था, बेसिकली आसिफ जावेद ने यही जो मजदूरों का दिन है इसके लिए जद्दोजहद की, और इसी शिकागो की जद्दोजहद को ताज़ा किया था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सरवर बाबा साहब का, प्रेस क्लब वालों का, अपने दोस्तों का, मजदूर साथियों का, जो इतनी गर्मी में जद्दोजहद करते हुए यहाँ पे आए हैं और अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राना साहब। वर्कर फेडरेशन जनरल रहनुमा सीनियर मजदूर रहनुमा जनाब चौधरी मोहम्मद नसीम साहब ने आन और अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब चौधरी मोहम्मद नसीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहीम और करीम है। मजदूर साथियों, आज का दिन जो आप मना रहे हैं ये उन शहादतों के शहीदों को सलाम पेश करने के लिए
जिन्होंने मजदूरों के लिए, औकात कार के लिए अपनी जानों के नजराने दिए। और आज हम 8 घंटे की ये जो है उसके लिए अभी भी हमारे कई मसले हैं। बहरहाल ये जिंदगी है, ये जद्दोजहद का एक नाम है। मैं लाहौर प्रेस क्लब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये आज सारा एहतमाम किया है और मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं। मजदूरों का दरअसल मसला ये है कि हम बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं और एक नेशनल जो कंसेंसस है वो नहीं है। तो हमें चाहिए कि एक नेशनल कंसेंसस की तरफ जाएं। पाकिस्तान में आप अंदाजा लगाएं कि जो नेशनल असेंबली है या सेनेट है या दूसरी, हमारी उधर कोई नुमाइंदगी नहीं है। और उसकी मेन वजह है कि हमें अपने हकूक का खुद ही अंदाजा नहीं है कि हम कितनी बड़ी ताकत है, करोड़ों की तादाद में। पर हम अपने वोट का सही जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो ये इसमें भी क़यादत मजदूरों की आएगी। बाकी जो ये है वो कहते हैं ना, बहुत बड़े हम बनना है मजदूर के पास। जिस खेत से मयसर ना हो बैकाम की रोजी, उस खेत के हर गोशा एक गंदम को जला दो। ये था अल्लामा इकबाल का पैगाम। पर फिर अल्लामा इकबाल को ने कहा, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी इस कश्ते बरा से, जरा सा नम हो तो ये मट्टी बड़ी दरखेज है साथी। हमें जो आज जरूरत है वो इत्तेहाद की जरूरत है और हमें हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो भी मजदूर सूबाई पंजाब की हुकूमत को मैं कहना चाहता हूँ कि वो लेके आ रही है लेबर पॉलिसी, उसमें कंसेंसस करें ताकि बाद में कोई हालात कोई खराबी की तरफ ना जाए। तो इसी के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान लाहौर प्रेस क्लब का और इनकी जो मुझे दावत थी, मैं इसके लिए भी इनका शुक्रगुजार हूँ। और मजदूर जद्दोजहद के लिए हम आप सबके साथ हैं। तो एक चीज और भी मैं आज के दिन से कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान जिस खतरात से मंडरा रहा है, जो हमारे पाक इंडिया के लिए जो मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो मजदूर जो है वो जब पाकिस्तान का मसला आएगा तो शीशा पलाई हुई दीवार की तरह साथ खड़े होंगे। बाकी ये मसले जो हैं हमारे अंदरूनी हैं, जो मसले मसाइल ये चलते रहेंगे। पाकिस्तान अव्वल, पाकिस्तान आखिर, पाकिस्तान। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਔਰ ਤੈਮੂਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਰੁਬੀਨਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, एक जद्दोजहद की अलामत है।